students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is images, links and forms in HTML. Objectives of learning: inserting images, linking web pages, creating forms in HTML. The websites we generally visit have lots of images as part of the web page. We also notice that all web pages are interlinked with each other. HTML allows us to implement all these functionalities in our web pages. In this chapter, we'll learn about inserting images, linking web pages and creating forms. तो स्टूडेंट्स, हम कई बार जब इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तो आपके वेब पेजेस में बहुत सारी अलग अलग टाइप की इमेजेस होती हैं, ग्राफिक्स होती हैं जो आपके वेब पेज का ही पार्ट होती हैं. और आप देखेंगे कभी कभी एक वेब पेज दूसरे वेब पेज के साथ इंटरकनेक्टेड होता है. तो HTML के बारे में आज आप पढ़ने वाले हैं, प्लस वेब पेजेस में किस तरीके से ये सारी पिक्चर्स को ऐड करा जाता है HTML को यूज़ करते हुए, वो आप आज जानने वाले हैं. Inserting images and other graphical elements such as drawings, paintings and charts enhance the look and feel of a web page. All these graphical elements are considered as image in the web page. HTML5 also allows us to insert images inside the web pages through the IMG tag. The IMG tag is a container tag and has various attributes. The attributes of the IMG tag are: attribute src functions. It specifies the locations or URL of the image to be displayed. Syntax: image src is equals to double inverted commas image path closing tag. Attribute alt functions. It specifies an alternative text that a browser will display if the image cannot be displayed. Syntax: angular comma angular bracket img src is equals to image path alt is equals to text angular bracket closed. Example: angular bracket open img src is equals to double inverted comma d colon / flower dot jpg double inverted commas close alt is equals to c. Attribute height or width functions. It specifies the height or width of the image in percentage. Syntax: angular bracket open img src is equals to double inverted commas open image path double inverted comma close height or width is equals to angular bracket value in percentage double inverted comma close question mark. Example: angle bracket open img src is equals to d colon / flower dot jpg double inverted comma close height is equals to 50% width is equals to 50% angle bracket close. Attribute align function. It specifies the width of the border around the image. Syntax: angle bracket open image src is equals to double inverted comma open image path double inverted comma close angle bracket close border is equals to double inverted comma open value inverted comma close angle bracket close. Example: angular bracket img src is equals to double inverted comma d colon / flower dot jpg double inverted comma close angle bracket close border is equals to double inverted comma open to double inverted comma close angle bracket close. Attribute align. It specifies the alignment of the image. There are 5 types of alignment: top, bottom, left, right and middle. Syntax: angle bracket open img src is equals to double inverted comma open image path double inverted comma close align is equals to top / bottom angle bracket close. Example: angle bracket open img src is equals to d colon / flower dot jpg align is equals to left angle bracket close. तो आपके जो इमेजेस होते हैं उसको इंसर्ट करने के लिए आपको HTML5 एनेबल करता है. HTML5 की मदद से आप अलग अलग वेब पेजेस में, वेबसाइट्स में इमेजेस को, ग्राफिक्स को, ये सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं. IMG टैग के साथ आप इसको एंटर करते हैं. IMG जो है ये टैग आपका एक कंटेनर टैग है जिसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स भी होते हैं. जैसे कि एट्रीब्यूट है src. इसका क्या फंक्शन होता है? जो लोकेशन होती है या URL होता है, आपका रिसोर्स लोकेटर होता है जो इमेज का, जहाँ पर डिस्प्ले होना होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है. इसका सिंटैक्स क्या होता है? एंगल ब्रैकेट ओपन होता है img src इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा आप लगाएंगे, इमेज पाथ डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे. फिर एट्रीब्यूट आपका आता है alt. इसका क्या फंक्शन होता है? जितने भी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होते हैं जो एक ब्राउज़र में आपको डिस्प्ले करवाने होते हैं मेन टेक्स्ट के अलावा,
वो इसका फंक्शन है। इसका क्या सिंटैक्स है, एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे, IMG SRC इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इमेज पाथ डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ऑल्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट और एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। फिर आपका एट्रीब्यूट आता है हाइट या फिर विड्थ। ये क्या होता है, आपका जो हाइट और विड्थ होता है इमेज का, वो परसेंटेज की वैल्यू में आपको ये डिस्प्ले करता है। इसका सिंटैक्स क्या है, एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे, IMG SRC इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इमेज पाथ लिखेंगे, हाइट स्लैश विड्थ जो भी आपको डिटरमाइन करनी है इज इक्वल्स टू एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे, उस दोनों एंगल ब्रैकेट्स के बीच में आप लिखेंगे वैल्यू, परसेंटेज में लिखना है आपको ये, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और क्वेश्चन मार्क से खत्म कर देंगे। अब अगला एट्रीब्यूट क्या है आपका, हाइट और विड्थ। ये आपकी जो हाइट और विड्थ होती है इमेज की, उसको परसेंटेज में आप डिफाइन करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, एंगल ब्रैकेट ओपन करते हैं, IMG SRC इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इमेज पाथ आप डालते हैं, हाइट या विड्थ जो भी आपको डिफाइन करना है वो आप लिखते हैं, इज इक्वल्स टू में एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखते हैं वैल्यू परसेंटेज में। फिर अगला एट्रीब्यूट आता है अलाइन का। अलाइन क्या करता है, आपके जो बॉर्डर्स होते हैं इमेज के आसपास उनको अलाइनमेंट करता है, उसके एट्रीब्यूट्स बताता है। इसका सिंटैक्स क्या है, एंगल ब्रैकेट ओपन करेंगे, IMG SRC इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में इमेज पाथ और एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, बॉर्डर इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, वैल्यू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। उसका अगला एट्रीब्यूट भी आपका अलाइन है। ये आपकी जो इमेज की अलाइनमेंट होती है, टोटल आपकी 5 टाइप की अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और मिडिल, तो उसके लिए यूज करा जाता है। इसका सिंटैक्स क्या है, एंगल ब्रैकेट आप ओपन करेंगे, इमेज SRC इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप इमेज पाथ लिखेंगे, अलाइन इज इक्वल्स टू टॉप फॉरवर्ड स्लैश बॉटम और एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। लेट अस स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट्स विद IMG टैग टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन अ वेब पेज। तो अब आप अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं IMG टैग को यूज करते हुए किस तरीके से वेब पेज में इमेज को एंटर करा जाता है। बट बिफोर दैट, note an HTML image by default appears in line with text, that is its bottom is aligned with the text। अब अगर आप कोई अलाइनमेंट के चेंजेस नहीं करते हैं तो आपकी इमेज का जो बॉटम होता है वो टेक्स्ट की अलाइनमेंट के साथ ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ज्वाइन हो जाता है। सबसे पहला आपका है सेंटर टैग। द सेंटर टैग इज अ कंटेनर एलिमेंट एंड इज यूज्ड टू अलाइन टेक्स्ट और इमेजेस इन द सेंटर ऑफ द पेज। दिस टैग इज especially useful for center aligning images because we cannot do it using the IMG tag. The syntax for using this tag is as follows. Syntax: center tag, text or image specified by using the IMG tag, angle bracket open forward slash center angle bracket close. This is the closing tag. Observe and try the following source code and see its effect in a web browser. अब आपका सेंटर टैग क्या होता है, ये आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं टेक्स्ट के या फिर इमेजेस को, उसको बिल्कुल आपके जो आपका वेब पेज होता है उसके सेंटर में आके अलाइन कर देता है। इसके भी आपके टैग्स होते हैं, इसको आप IMG टैग के साथ नहीं अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर टैग का ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसका सिंटैक्स क्या है, ओपनिंग सेंटर टैग आएगा आपका, फिर बीच में आपका टेक्स्ट या फिर इमेज आ जाएगी जो भी आपने स्पेसिफाई कर रखी है बाय यूजिंग द IMG टैग, और फिर आपका सेंटर क्लोजिंग टैग आ जाएगा। Critical thinking: the following code is written to align the image in center of the browser window, but the desired result is not achieved. Can you tell why? Rewrite the code correctly. Angle bracket open, IMG SRC is equals to double inverted comma open, computer.gif double inverted comma close, align is equals to double inverted comma open, centers double inverted comma close। तो यहाँ पे नीचे कोड लिखा हुआ है जो आपको अभी बताया गया है। इस कोड के साथ जो अलाइनमेंट है या इमेज का टेक्स्ट है वो अलाइन नहीं हो पा रहा है। आपको बताना है कि कोड में क्या गलती है और उसको सही करके आपको इसका जवाब खुद देना है। Linking web pages. A website is a collection of web pages which are interlinked with each other and contains related information. These web pages are linked with the help of a feature of HTML called hyperlink. A hyperlink is generally an underlined text which takes you to another web page when clicked. Generally, hyperlinks are seen in blue color. Images can also be used as hyperlink. When mouse is hovered over it, the mouse pointer changes to hand shape. When a hyperlink is clicked, its color changes to purple. HTML5 allows us to create two types of linking, which are interlinking. The process of linking a particular section of the same web page is called interlinking. In this case, the hyperlink and the linked section appears on the same web page. Hence, interlinking is also known as internal linking. Intralinking:
The process of linking a web page to another web page of the same website or another website is called intralinking. It is also known as external linking. तो अब आपका आता है वेब पेजेस को लिंक करना. ये क्या होता है? कभी कभी आप नोटिस करेंगे जब आप एक वेब पेज को गो थ्रू कर रहे होते हैं तो एक हाइपर लिंक उसमें होता है, ब्लू कलर से ये डिनोट किया जाता है, जो आपको या तो उसी वेब पेज के किसी और सेक्शन में लेके जाएगा या फिर किसी और वेब पेज तक ही आपको पहुंचा देता है. तो दो टाइप की आपकी लिंकिंग होती है. एक होती है आपकी इंटरलिंकिंग, जो आप HTML5 की मदद से करते हैं. इंटरलिंकिंग में क्या होता है, एक ही वेब पेज, उसी वेब पेज में नीचे ही कहीं पे आपको उसका लिंक दिया होगा, यानी कि वो लिंक आपको दूसरे वेब पेज पर नहीं लेकर जाता है, उसी वेब पेज के किसी और पार्ट में आपको लेकर जाता है. इसको इंटरनल लिंकिंग भी कहा जाता है. दूसरा है आपका इंट्रा लिंकिंग, जिसे एक्सटर्नल लिंकिंग कहा जाता है. ये आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे या फिर सीधे दूसरी वेबसाइट तक पहुंचाता है. दूसरे टाइप का टैग है आपका एंकर टैग. Anchor tag is used for creating hyperlinks in HTML web pages. It is a container tag and used as opening tag A, hyperlink text, closing tag A, where hyperlink text is a text or an image. और फिर आपका एंकर टैग आता है. ये जब आपको हाइपरलिंक्स क्रिएट करने होते हैं अपने HTML5 की मदद से, तब आप करते हैं. इसमें भी आपके सिंटैक्सेस होते हैं. वो क्या होता है, सबसे पहले आपका ओपनिंग ए टैग आता है, बीच में आपका हाइपरलिंक टेक्स्ट आता है, उसके बाद उसको आप क्लोजिंग ए टैग से बंद कर देते हैं. द सिंटैक्स फॉर लिंकिंग इज angle bracket open A href is equals to double inverted comma open URL double inverted comma close angle bracket close. Text or graphics that will be displayed as the link. Closing A tag, where href hypertext reference attribute specifies the destination of a link and is given by the URL. Here the URL is the location of the resource to which we want to link. Whenever we define a hypertext link, we use the anchor A tag with an href attribute to indicate the start of the hypertext link and A tag to indicate the end of the link. The link is activated by clicking on the text or graphics between the opening A tag and closing A tags. Let us study the following example to understand the use of A tag. अब आपका जो एंकर टैग होता है, इसमें आपको अलग अलग टाइप के जो हाइपर लिंक्स होते हैं वो आप ए टैग, ए ओपनिंग टैग, जिसमें आपका एक एंगल ब्रैकेट ओपन होता है, बीच में ए आता है और एंगल ब्रैकेट से क्लोज, ये आपका ओपनिंग टैग होता है. बीच में आपका हाइपर लिंक टेक्स्ट आता है और उसके बाद आप उसको क्लोजिंग ए टैग से बंद कर देते हैं. क्लोजिंग कैसे होता है, एंगल ब्रैकेट ओपन होता है, फॉरवर्ड स्लैश आता है, ए आता है और एंगल ब्रैकेट से क्लोज हो जाता है. तो इसका सिंटैक्स कैसे करते हैं आप लिंकिंग के लिए, यहाँ पे आप एक एंगल ब्रैकेट ओपन करते हैं, ए लिखते हैं, href इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप URL डालते हैं और एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं. फिर आपका टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो आता है और एंड में आपका क्लोजिंग ए टैग आ जाता है. यहाँ पर href का मतलब क्या है, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस. तो ये जो URL है, ये वो लोकेशन होती है जो डायरेक्टली आप जब इस हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आपको उसी वेब पेज तक या उस लोकेशन तक लेकर चली जाती है. In this example, we make the words my link as the hyperlink to the document br.html. When you click the link, the document br.html will be opened as given below. By using the img tag, you can also give an image as the hyperlink. On clicking the image, now the web page will appear. तो आपका क्या होता है यहाँ पर, जैसे आप images के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में भी hyperlinks दे सकते हैं, ये आपके वेब पेजेस में होते हैं. इन पे क्लिक करने के बाद आप सीधे दूसरे वेब पेजेस पर पहुँच जाते हैं. अब अगला टॉपिक है हमारा form in HTML. An HTML form is a section of document which contains controls such as text fields, password fields, check boxes, radio buttons, submit button, menus, etc. An HTML form facilitates the user to enter data that is to be sent to the server for processing, such as a name, email address, password, phone number, etc. Forms are the most popular way to make web pages interactive. A form in a web page allows user to enter the required information and submit it for further processing. अब आपके क्या आते हैं, फॉर्म आते हैं HTML में. जस्ट लाइक आप कोई भी टिकट का फॉर्म भरते हैं, टिकट आपको खरीदनी होती है तो आपको कुछ फॉर्म्स को फिल करना पड़ता है. बेसिकली इसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं. तो आपके HTMLs में भी आपके फॉर्म्स होते हैं जो वेब पेजेस को और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव बना देते हैं, ताकि जब भी आप ये फिल करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी भी ज़रूरतों का ध्यान रखा जा रहा है. तो HTML में ऐसे बहुत सारे वो होते हैं, जैसे आप ईमेल एड्रेस डालना होता है, आपको पासवर्ड्स डालने होते हैं, फ़ोन नंबर्स डालना होता है, ताकि आपका जो सर्वर है वो आगे की तरफ प्रोसेसिंग कर सके. HTML form tags. Tag, form, description. It defines an HTML form to enter inputs by the user side. Input tag, it defines an input control. Text area tag, it defines a multi-line input control.
Label tag, it defines a label for an input element. Field set tag, it groups the related element in a form. Legend tag, it defines a caption for a field set element. Select tag, it defines a drop down list. Out group tag, it defines a group of related options on a drop down list. Option tag, it defines an option in a drop down list. Button tag, it defines a clickable button. अब आपके HTML फॉर्म में भी अलग अलग टाइप के टैग्स होते हैं, जैसे फॉर्म टैग जो होता है इसमें जो यूज़र होता है वो अपनी डिटेल्स या जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो खुद एंटर करते हैं। फिर आता है इनपुट टैग, ये इनपुट कंट्रोल को डिफाइन करता है। टेक्स्ट एरिया टैग, जहाँ पे मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल होता है। फिर आपका लेबल टैग आता है, आपके इनपुट एलिमेंट में अगर आपको कोई भी लेबलिंग करनी होती है वो यहाँ पे करी जाती है। फिर आपका फील्ड सेट टैग आता है, ये आपके अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं उनको एक जगह पे ग्रुपिंग कर देता है। फिर आपका लेजेंड टैग आता है, या आपका जो कैप्शन होता है उसको डिफाइन करता है, फील्ड सेट एलिमेंट के कैप्शन को डिफाइन करता है। फिर आपका आता है सिलेक्ट टैग, ये डिफाइन करता है आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट। आउट ग्रुप टैग, जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट में इंटरकनेक्टेड ऑप्शंस होते हैं वो आपको ये शोकेस करता है। फिर आपका ऑप्शन टैग आता है, ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट के जो ऑप्शन होते हैं उसको डिफाइन करता है। फिर आपका बटन टैग आता है, ये आपके जो क्लिकेबल बटन्स होते हैं उसको डिफाइन करता है। क्रिएटिंग अ फॉर्म, the HTML form tag is used to create an HTML form. It can be placed anywhere in the body of the HTML document. It is a container tag. There are various controls which are used to create HTML forms. Each of these controls has its own attributes. Syntax: opening form tag, form elements, closing form tag. The form elements are different types of input elements such as checkboxes, radio buttons, submit and reset buttons, and a drop down list, etc. All the elements in the form must be defined between the opening form and closing form tags. Other tags such as headings, paragraph, table, etc. can also be used in the opening form and closing form tags. Let us study these elements in detail. अब आपके आते हैं फॉर्म, HTML को यूज़ करते हुए आपके जो HTML टैग्स होते हैं उनको यूज़ करते हुए आप फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं और बॉडी में जहाँ पर भी आप चाहते हैं आप इनको प्लेस कर सकते हैं। अलग अलग एट्रीब्यूट्स इसके होते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, पहले आपको ओपनिंग फॉर्म का टैग आता है, बीच में आपके फॉर्म के एलिमेंट्स आते हैं, देन आपका फाइनली क्लोजिंग फॉर्म का टैग आ जाता है। तो इसमें आपके दो टाइप के टैग्स यूज होते हैं, ओपनिंग फॉर्म टैग और क्लोजिंग फॉर्म टैग्स। द इनपुट टैग, the input tag is the most important form element. It is used to provide an input field where a user can enter the data within a form. Each input field assigns a value to a variable which has a specific name and a data type. The input tag has many variations depending on the type attribute. These are as follows. तो आपके जो input tag होते हैं उसमें आपके अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जो भी चीज़ें आपको पर्टिकुलरली एक फॉर्म में डालनी होती है HTML को यूज़ करते हुए या वेब पेजेस पे, वो आप इनपुट टैग की मदद से करते हैं। इसके भी आपके अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला है टाइप। This type is used to specify the type of field we want to create. It takes one of the predefined values. The predefined values for this attribute are given ahead. Radio. This value is used to create a radio button control. A radio button control is used to select only one option from a set of options. Text. This value is used to create a text box field. A text box field is a one-line text input control. The text is the default value of the type attribute. Button. This value is used to create an action button control. An action button control is used to perform an action on clicking it. Checkbox. This value is used to create a checkbox control. A checkbox control allows us to select multiple options from a set of options. Reset. This value is used to create a reset button control. The reset button control, when clicked, clears all the values entered in the form fields. Password. This value is used to create a password field. A password field is just similar to a text box field. The only difference is that the text entered in the password field will not be readable because it appears in the form of stars symbol. Submit. This value is used to create a submit button control. The submit button control is used to submit all the entered values in form to the specified URL. अब आपके जो type attribute होता है, ये जो एट्रीब्यूट होता है जो आपको टाइप ऑफ फील्ड, जैसी भी आपको फील्ड को क्रिएट करना होता है तब यूज़ करा जाता है। इसके प्री डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं। इन प्री डिफाइंड वैल्यूज़ के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। सबसे पहला है रेडियो, ये आपको रेडियो बटन कंट्रोल देता है और ये यूज़ करा जाता है जब आपको वन ऑप्शन से
फॉर्म करने होते हैं अ सेट ऑफ ऑप्शंस, एक ही ऑप्शन से आपको अ सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ ऑप्शंस को एक साथ सेट करना होता है। फिर आपका आता है टेक्स्ट, आपकी जो टेक्स्ट बॉक्स फील्ड होती है उसमें आपको जब वैल्यूज को डिफाइन करना होता है। फिर आपकी टेक्स्ट बॉक्स फील्ड में ये तो होती है आपकी एक वन लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, जो टेक्स्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट आपका टाइप एट्रीब्यूट का पार्ट होता है। फिर आता है बटन, ये जो वैल्यू है आपके जो एक्शन बटन कंट्रोल है उसको क्रिएट करने के लिए यूज करी जाती है। और जितने भी ऑप्शंस आपको जब आप ये कोई काम कर रहे होते हैं HTML को यूज करते हुए, तो आपको वो जब आपके अलग अलग ऑप्शंस को आपको एक्सेस करना होता है तो आपका ये वाला बटन यूज में आता है। फिर आता है चेक बॉक्स, ये जो है दिस वैल्यू इज यूज टू क्रिएट अ चेक बॉक्स कंट्रोल। चेक बॉक्स आपको अलाउ करता है ताकि मल्टीपल ऑप्शंस जो होते हैं सेट ऑफ ऑप्शंस में से जब मल्टीपल ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना होता है तब यूज करा जाता है। फिर आता है पासवर्ड, ये करा जाता है जब आपको कोई भी फील्ड को क्रिएट करना होता है बाय यूजिंग अ पासवर्ड। अ पासवर्ड फील्ड इज जस्ट सिमिलर टू अ टेक्स्ट बॉक्स फील्ड, दोनों में कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है, सिमिलैरिटीज हैं। फिर आता है सबमिट, सबमिट क्या होता है, आपने कोई भी चीज बना दी है, आपको सबमिट बटन कंट्रोल को क्रिएट करना है और एंड में ये यूज होता है जब आपकी सारी वैल्यूज को आप एंटर कर चुके होते हैं, फाइनली आपको अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करना होता है। Name, this attribute is used to specify the identity of the field on the web page। तो नाम क्या होता है, नेम का एट्रीब्यूट क्या होता है, जो फील्ड की आइडेंटिटी होती है बेसिकली वो आपको ये डिफाइन करता है। वैल्यू, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द फील्ड। द सिंटैक्स ऑफ द इनपुट टैग इज एज फॉलोज। Angle bracket open, input attribute is equals to double inverted comma is open, value double inverted comma close, name is equals to double inverted comma open, value double inverted comma close, angle bracket क्लोज। अब आपका आता है वैल्यू, आपकी जो फील्ड्स होती हैं उनकी वैल्यूज को जब आपको स्पेसिफाई करना होता है तब यूज करा जाता है, इसका एक सिंटैक्स होता है। इनपुट टैग को आपको यूज करना होता है। सबसे पहले आप एंगल ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इनपुट एट्रीब्यूट डालते हैं इज इक्वल्स टू का साइन, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करते हैं, वैल्यू डालते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं, फिर नेम आता है इज इक्वल्स टू का साइन आता है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वैल्यू आती है और फाइनली आपकी एंगल ब्रैकेट से क्लोज हो जाता है। लेट अस क्रिएट अ वेब पेज शोइंग द यूज ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स। तो इन्हीं एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए आपकी जो वेब पेजेस है उनको बनाया जाता है। सबमिट और रीसेट बॉक्स, फॉर एवरी फॉर्म अ सबमिट बटन इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द फॉर्म डेटा टू द वेबसाइट। Submit button transfer the data of the form to the server. The submit button in gray color with a label of choice and the value attribute is displayed on the form. All the data on the form is submitted just by clicking it. Syntax, angle bracket open, input type is equals to double inverted commas open, submit double inverted commas close, angle bracket close. The above statement defines a submit button. Attribute of input with type is equals to submit. Attribute name, description, it specifies the name of the button. Attribute value, description, it specifies the text written on the button. अब आपका आता है सबमिट या फिर रीसेट बॉक्स। आपका सारा काम खत्म हो चुका है, सारी एंट्रीज आप कर चुके हैं, फाइनली आपको अपने प्रोजेक्ट या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसको आपको खत्म करना है, तो आप सबमिट पे करते हैं। और रीसेट बॉक्स का तब यूज होता है जब आपको कुछ चेंजेस लेकर आने होते हैं। तो इसमें आपका सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स क्या है, एंगल ब्रैकेट ओपन करते हैं आप, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू एंगल दो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन करते हैं, सबमिट आते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स से क्लोज करते हैं और एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। अब आपका जो सबमिट बटन होता है उसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे नेम एट्रीब्यूट होता है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, बटन का जो भी नाम होता है वो ये स्पेसिफाई करता है। फिर आता है वैल्यू एट्रीब्यूट, आपने जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके बटन पे ये उसको स्पेसिफाई करता है। The name setting adds an internal name to the button so that the program which handles the form does not confuse the button with the other fields. When the data entered in the form has to be erased and default values have to be taken, reset box is used. When a user clicks reset button, all the entries on the form gets clear and the user can enter the data from the very beginning. Syntax, angle bracket open, input type is equals to double inverted comma open, reset double inverted comma close, angle bracket close. Attributes of input with type is equals to set. Attribute name, description, it specifies the name of the button. Attribute value, description, it specifies the text written on the button. तो अब आपका आता है रीसेट बॉक्स। कभी कभी आप नाम कुछ डाल देते हैं, कोई भी वैल्यूज डाल देते हैं, अब आपको वो वैल्यूज या नाम नहीं चाहिए, आपको रीसेट करना है, तो उसके लिए आप रीसेट बॉक्स को यूज करते हैं। जैसे ही आप रीसेट बॉक्स को यूज करते हैं वैसे ही आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो वापस जीरो पे चली जाती हैं और वापस से आप अपना नया डेटा को एंटर कर सकते हैं। इसका क्या सिंटैक्स है, एंगल ब्रैकेट ओपन,
इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, रीसेट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंगल ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। एंड जस्ट लाइक योर सबमिट वाला एट्रीब्यूट, बिल्कुल उसी की तरह जो रीसेट इनपुट है उसके भी कुछ आपके एट्रीब्यूट्स हैं। नेम एट्रीब्यूट है जो आपके बटन का नाम स्पेसिफाई करता है, वैल्यू एट्रीब्यूट है जो आपके बटन पे टेक्स्ट लिखा होता है, जो भी चीज़ें लिखी होती हैं वो ये स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट इज द टेक्स्ट एरिया टैग। The text area tag is used to create a multi-line text box that can accept long text values. We can specify the number of rows and columns we want in text area by using the rows and calls attributes of the text area tag. अब आपका आता है text area tag। ये मल्टी लाइन आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखता है। जब आपके बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं जो आपको एक साथ लिखना होता है तो ये आपको टेक्स्ट एरिया में वो अलाउ करता है। इसमें आप टेक्स्ट एरिया को यूज़ कर सकते हैं कैसे, रोज एंड कॉल्स एट्रीब्यूट्स को लेते हुए, जो कि आपके टेक्स्ट एरिया टैग का ही पार्ट है। नेक्स्ट इज द सिलेक्ट टैग। Sometimes we need to display multiple options in the form of a drop down menu or list from which we can select only one option at a time. The select tag with the option tags allows us to create a drop down list. The option tag specifies an option in the drop down list. The syntax of the select tag is as follows. Angle bracket open, select angle bracket close, angle bracket open, option, angle bracket close, option 1, angle bracket open, option, angle bracket close, option 2, angle bracket option, angle bracket close, option n, and select closing tag. अब आपका क्या है, सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग से आप क्या करते हैं, आपके अलग अलग जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट आता है, इंटरकनेक्टेड ऑप्शंस होते हैं, ये आपको एक ही बार में अलग अलग ऑप्शंस का एक्सेस देता है। इसके अलावा आपके जो सिलेक्ट टैग होते हैं उसके साथ ऑप्शन टैग होता है जो अलाउ करता है आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट को इनेबल करने के लिए। आपका ऑप्शन टैग जो होता है वो स्पेसिफाई करता है आपके अलग अलग ऑप्शंस आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में। इसका भी आपका एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट का ओपनिंग टैग आएगा, फिर आपका ऑप्शन का ओपनिंग टैग में ऑप्शन 1, फिर दूसरा ऑप्शन 2 के पहले आपका दूसरा आपका जो ओपनिंग ऑप्शन टैग है, फिर ऑप्शन n के आगे आपका ओपनिंग ऑप्शन टैग, एंड फाइनली आपका जो सिलेक्ट आप खत्म कैसे करेंगे, क्लोजिंग सिलेक्ट टैग से। Let us understand the following example which displays the use of text area, select, submit, reset and option tags. तो अब आपका क्या है, आपके जितनी भी अलग अलग टैग्स हैं, सिलेक्ट एरिया टैग है, सिलेक्ट टैग है, सबमिट टैग है, रीसेट एंड ऑप्शन टैग्स है, उसको यूज़ करते हुए आप HTML5 को यूज़ कर सकते हैं। Let's revise. HTML images by default appear in line with text. Images are inserted into a document using the image img tag. The src attribute is used to display an image on a web page. Hyperlink is usually a word, a group of words or an image that when clicked links to a new document or a new section with the current document. The anchor A tag is used to make a text or an image as hyperlink. This tag is a container tag. Images can also be used for creating hyperlinks. Various HTML tags that are used for collecting the information from the user are input, select, and text area. These tags must be defined in between the form and closing form tags. The attributes that can be used within the input tag are text, password, checkbox, radio, submit and reset. Text area tag is used to input several text lines at a time. Select tag prompts the user to select one or more items from the drop down list. The option tag inside the select tag defines the available option in the list. तो यहाँ पे हमने देखा कि by default जो HTML होता है उसमें आपका inline होता है with the text। इसके अलावा आपको हाइपरलिंक्स देने होते हैं जो आपको या तो सेम वेब पेज के अलग पार्ट पे लेके जाता है या फिर डायरेक्टली आपको दूसरे वेब पेज पर लेके चला जाता है। हाइपरलिंक्स आपके ब्लू कलर के होते हैं, अलग अलग टाइप के टैग्स इसमें होते हैं। इनपुट टैग होता है जिसमें आपका HTML5 को यूज़ करते हुए आप हाइपरलिंक्स या फिर किसी वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। सबमिट टैग होता है, इनपुट टैग होता है, सिलेक्ट टैग होता है, रीसेट टैग होता है, जिनको यूज़ करते हुए आप डेटास को रीसेट भी कर सकते हैं और फाइनली काम खत्म करने के बाद सबमिट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आप खुद से करिए।